Hello everyone, welcome to EduTap. We know that when we are preparing for any competitive exam, previous year papers play a very important role. They help you to understand the trend, pattern, strategy, and difficulty level with respect to any competitive examination. So, as a part of this video, we are going to discuss the IRDI Grade A Insurance and Management paper for the year 2024, and it is going to be very helpful for those aspirants who have already actively started their IRDI Grade A preparation. And please also remember that the intention behind this video is not just to tell you the answers, because answers are something that even if you will go to Google, you can easily Google that what is the answer to this question, what is this type of risk, what is that type of risk, right? So this is not the, I would say, primary purpose with respect to this video. The primary purpose is that basically to help you understand the how you could have attempted the paper. Apart from that, what was the difficulty level with respect to the questions, what the questions asked from the current affairs, or I would say the static portion, that is the syllabus, what type of numericals were asked, how you could have tackled them, right? So this is the main agenda behind this video. So I hope the purpose is pretty much clear to all of you. Now, before we discuss all these things, here is a small announcement. We know that PYQs play a very important role, right? I just told you. So in order to download the free ebook of previous year papers for IRDI grade A examination, what you can do, you can go to the description box, click over the link, and from there you can easily download them, right? So I hope it is clear to you. Apart from that, I would say the Teachers Day sale is also going on a website, and where you can avail, I would say, 74% off with respect to different types of regulatory body courses that we are offering. So if you're preparing for RBI, IFSCA, IRDI, NABARD, SEBI, so basically you can just use this coupon code, which is Guru74, and you can avail this 74% off as a part of these courses, right? And please also remember that this coupon code is valid from 4th of September till 6th of September only, right? So if you think it can help you, you can definitely check it out. Now let us move forward, and first of all let us see the syllabus that is there with respect to this insurance paper. So when we talk about syllabus, you can see that different type of components, or I would say areas, are mentioned as a part of the syllabus. Now my strong suggestion is that while you are covering the syllabus, you have to cover each and every keyword that is mentioned in the syllabus in a detailed manner. When I say detailed manner, what do you mean by that? For example, let us say if you're covering history of Indian insurance, so you have to make sure that you are covering it in a detailed manner, because a descriptive question can be asked specifically in the examination. They can ask you that write a detailed note on history of Indian insurance. They have asked such kind of straightforward questions in the past years. That's why I'm telling you, right? For example, if you're covering principles of insurance, you have to make sure that what are these different type of principles. You need to have detailed notes on this I would say component also, right? Apart from that, let us say you are covering risk, so you have to know what do you mean by risk, what are the different types of risk, what is the difference between, I would say, risk, peril, and hazard, right? So all this kind of, I would say, detailed understanding you need to have for each and every term. The point is that you don't have to cover these keywords in a superficial manner, right? Because they will ask you a question directly from the syllabus, and if you have not covered the syllabus, then you are going to suffer in the examination, and you will come to know when I will show you the PYQs, right? And this orange portion that we have seen, this orange portion that you are seeing, this is basically the area or the keywords from where the questions were asked in the year 2024, right? So majority of the questions, I would say, were asked straightforwardly from the syllabus only. So syllabus is the primary weapon with which you need to have a strong grip, right? So to keep a good grip on the syllabus, make sure that you are covering it in a, I would say, a detailed manner, right? Not in a superficial manner. So I hope it is clear to you. Now let us move on to PYQs, and let us see what were the different type of questions that were asked, and they will give you a better clarity. So first of all, you can see that if we talk about question number 1, they have given you choices, right? So they are asking you to attempt 4 out of 6 questions only, and this is something that they do around every year, right? So next year also they can do the same. So I would say this is a good thing, because aspirants get different type of choices, and based on your own comfort you can select 4 questions and you can answer them. Now if I read the questions for you, right, you can see, explain the difference between dynamic risk and static risk. Again, a straightforward question is asked from the asked from the syllabus only. Then the next question is related to risk only, right? You can see the next question is also very much basic. It is asking what are risk,
perils and hazards in insurance industry. Again, I told you, if you're covering the syllabus in an in-depth manner, you will be comfortable with these type of questions. Then explain the concept of insurable interest and explain how it is identified in marine insurance, property insurance and life insurance. So you can see it over here that insurable interest is a part of your syllabus, right? So while covering insurable interest, it does not mean that you will only know that what is insurable interest. That would be incomplete. You have to know what is insurable interest, why do we calculate insurable interest, how basically insurable interest is applicable in different type of insurance, right? So this is something that you have to cover. Such a type of, I would say, in-depth coverage is required with respect to your topics. Then only you will be comfortable with maximum type of questions that are asked in the examination. Then the next question is also from risk only. You can say this portion is so important. Why can't pure risk be controlled, and discuss the difficulties insurers face in controlling the pure risk, right? Again, such type of question, I would say, you can see three questions, one, two, and three questions are straightforwardly asked from the risk portion only. So you can see, if you have covered the syllabus properly, you would have been in a comfortable position to attempt these type of questions. Then what role do surveyors play in assessment of losses in insurance sector? So if you see it over here, intermediation is mentioned as a part of your syllabus. So as a part of this component, you have to cover that who are intermediaries, what are the different type of intermediaries are there in the insurance sector, what is their function, right? So you have to cover all these things. So if you have covered in this format, again, you can answer this question very easily, right? Then what are the major geopolitical challenges faced by the insurance sector? This is something I would say asked in context of, you can add some value using the current affairs also. We will see later on when we will see the answer to this question, right? So let us see what you could have written, I would say, the answer as far as these questions are concerned. Now the first question, explain the difference between dynamic risk and static risk. Now there could be two type of possibilities, right? Depending on, I would say, the type of aspirant. The thing is that there would be first type of person who know the exact answer to this question, who has complete clarity. He has prepared the content beforehand. He knows that he has to talk about the definition, the nature, the cause, the impact. Then he can write example also, all such sort of things, right? Now if you have this level of clarity, my suggestion is that please try to draw table only. Why table? Because table basically shows more clarity that you are having with respect to the answer. Apart from that, table also saves your time as well as the space in the examination, because do not forget that when we talk about IADI grade A, you have to write your answer using pen and paper, right? I hope you know that. Unlike, I would say, exams like RBI or NABARD, here you have to, where you have to type your answers. In case of IADI, you have to write it using pen and paper, right? So it is very important, because the space that will be provided to you in the answer sheet, the space is going to be limited. For example, for 100 words question, they are going to provide you 1.5 page, right? For 300 word questions, they are going to provide you 3 pages, right? So you have to optimize your space. You have to use your space in a wise manner, so that basically you don't end up compromising with the quality of your answer, right? So this table, these type of tables, basically they help you to use that space in the most efficient manner. But let us say there is a second category of student who does not know the exact framework or the exact points through which he can differentiate between the dynamic risk and static risk. Maybe he has the idea that what is dynamic and static risk, but he is not able to present his answer in a comprehensive manner with full clarity. So in that case, what you have to do, of course, you will have to write your answer in paragraph format only, right? So firstly you will write what is dynamic risk and static risk, or what you can do, you can write a complete paragraph covering about dynamic risk, and in the second paragraph you can talk about static risk, and then after that you can conclude that so and so is the case with respect to dynamic risk and static risk as a part of the insurance sector. So depending on the type of knowledge that you are having with respect to that content, this is the approach that you can go for, right? Now as I told you in the initial part of the session only, that the purpose is not to tell you the answers. Answers तो आप कहीं से भी देख लोगे, गूगल पे जाओगे वहां से देख लोगे, एनीवे सिलेबस आपको कवर करना ही है तो वहां भी आप आंसर देख लोगे. आंसर शेयर करना पर्पस नहीं है. पर्पस ये है कि क्या माइंडसेट चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अटेम्प्टिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो अगर मैं इस क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि रिस्क एक ऐसा कीवर्ड है जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और अगर आपने रिस्क के बारे में अच्छे से पढ़ा है, मैंने जैसे कि आपको बताया कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपने की है, देन यू शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? सो दैट इज द आइडिया. Apart from that, one value that I can add with respect to this answer is that, for example, you can see in case of example, right?
We know what are dynamic risks, right? That keeps on changing, that are continuous in nature with respect to economy, society, technology, and business environment. For example, inflation, for example, GDP, for example, policy changes, unemployment, right? Now, my suggestion is that instead of adding such vague examples, if you don't know anything, of course you have to add that. But if you are able to think of something that is more realistic, for example, over here in case of this example, you could have written about COVID-19, right? Somebody could have written about COVID-19, that during COVID-19, how basically it leads to dynamic type of risk. For example, in inflation, recession, unemployment, policy changes like repo rate, also sort of things we have seen during those times, right? So you could have written that because COVID-19 is not something that has the impact on a certain type of geography or a particular type of state. It has widely impacted the entire economy, right? And not just the Indian economy, I would say the global economy also. So that could be a more realistic example that you could have written as a part of dynamic risk. If we talk about static risk, you could have written about, I would say, the present cloud burst, right? That is going on in Jammu and Kashmir. It is there in the news. You could have written about the cyclones that come almost every year in West Bengal or Odisha, right? In these states. So that could be a type of static risk, this kind of earthquake, flood, accident. So that basically adds more value to your answer because your answer is getting more realistic, and I would say it makes more sense, right? So I hope you are able to connect with me what I mean to say. So this is how you could have attempted this question. The second is the difference between risk, perils, and hazard. Again, I would say I'm not going to categorize it as a difficult question. Why is it so? Because this question is also basic, straightforwardly I would say related to syllabus only. Difficult में उस क्वेश्चन को कहूंगा कि यार कुछ ऐसा पूछ लिया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, आप उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कह सकते हो. बट वो क्वेश्चन जो डायरेक्टली सिलेबस से अलाइन होकर आ रहे हैं उसको आप डिफिकल्ट कैसे कहोगे, क्योंकि सिलेबस तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए, राइट? प्रिपरेशन करते टाइम सबसे पहले आप क्या उठाते हो? दो चीजें उठाते हो, एक सिलेबस एंड द सेकंड इज पीवाईक्यूज. और अगर सिलेबस ही कवर नहीं किया इसका मतलब आप अंडर प्रिपेयर्ड हो. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हो तो क्वेश्चन पेपर मुश्किल हो गया. क्वेश्चन पेपर मॉडरेट इजी लेवल का ही होगा, लेकिन अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हो तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर टारगेटिंग द सिलेबस. सो लेट अस सी दिस आंसर आल्सो. सो ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वन 150 वर्ड्स में लिखना है आपको, तो ज्यादा कहानी आप नहीं बना सकते, ठीक है? मैं तो कहूंगा कि वाइल डिफाइनिंग रिस्क, इफ यू आर राइटिंग टाइप ऑफ रिस्क, तो जरूरी नहीं है कि आप चारों तरह के रिस्क लिखो, ठीक है? या फिर इतना एक्सप्लेन करो. तो आप चाहो तो दो तरह के रिस्क लिख दो, क्योंकि इसके अलावा अगर आपको रिस्क सारे रिस्क डिफाइन करने पड़ जाओगे, क्या पता आपका पेपर ना छूट जाए. बिकॉज एडाई में मैं बोलूंगा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप चाहो तो सक्सेस स्टोरी भी देख सकते हो, हर टॉपर यही कह रहे हैं कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जितना पूछा है उतना ही लिखना है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखनी है, ठीक है? तो मान लो थोड़ी सी और क्लैरिटी ऐड करना चाहते हो, दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ रिस्क दैट आर देयर. इसके अलावा भी आप कर सकते थे, जैसे कि पर्टिकुलर रिस्क को फंडामेंटल रिस्क, और दो तरह के रिस्क होते हैं, राइट? पर मैं बोलूंगा कि पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि कंटेंट ज्यादा लिखना है. पहली प्रायोरिटी दिमाग में ये होना चाहिए कि पेपर को खत्म करना है. बिकॉज हमेशा अगर आप, आई वुड से, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग I would say if you are to attempt 4 questions, right? So instead of attempting 3 detailed answers with respect to those questions, I would say focus on attempting all the 4 questions. ऐसा ना हो कि आप अच्छा लिखने के चक्कर में 4 में से 3 ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और एक क्वेश्चन जो आता था वो भी छोड़ दिया आपने, ठीक है? तो पहली जॉब है पेपर को खत्म करना. दूसरी जॉब है ऑफ कोर्स कि अच्छा आंसर भी लिखना, ठीक है? अच्छा आंसर तो ऑफ कोर्स लिखना ही है, वरना उसके बिना तो मार्क्स कम मिलेंगे, राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर हमने रिस्क को डिफाइन कर दिया, अब आपको अगर टाइम कम है तो टाइप ऑफ रिस्क में चाहे तो इनको ज्यादा डिफाइन मत करो, या तो दो तरह के रिस्क लिख के आ जाओ, ठीक है? दो, और बाकी दो को बस स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दो कि उनका मतलब क्या है. ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है बीच में, वरना क्या होगा, आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, राइट? सो यू कैन टॉक अबाउट व्हाट इज रिस्क, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क दैट आर देयर, ठीक है? और क्योंकि आप, मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम में पेन एंड पेपर से लिख रहे हो, तो आप वहां पर ऐसे भी कर सकते हो कि आपने रिस्क लिखा है ऐसे, यू हैव रिटन द रिस्क, एंड आफ्टर दैट यू कैन ड्रॉ दिस स्मॉल डायग्राम कि एक छोटा सा सर्कल बना दिया, एक एरो, एरो थ्रू, एरो 3 एंड एरो 4. यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, बस एक एक लाइन में डिफाइन कर दिया. चलो आगे चलो, क्योंकि पेरिल भी तो डिफाइन करना है. देन मूव ऑन टू पेरिल, राइट? देन मूव ऑन टू हैजार्ड, और हैजार्ड में भी सेम चीज की. अब मैंने थोड़ा सा शायद ज्यादा बता दिया यहाँ पर, इतना ज्यादा भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है? और टाइम कम रहे तो टाइम कम बचे एकदम कि यार ऑलरेडी मैं इतना सब कुछ कवर कर चुका हूँ, टाइम नहीं बच रहा है तो कंक्लूजन को स्किप कर दो चाहे, ठीक है? इतना आप कर सकते हो, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना. एक आधे क्वेश्चन में कर लिया तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? सो टू द पॉइंट बात करो, टॉक अबाउट रिस्क, टॉक अबाउट पेरिल, एंड देन टॉक अबाउट हजार्ड, एंड you can talk about these types in a very brief manner, ठीक है? because question is of 150 marks only. तो 150 marks को divide करो 3 से, so 3 5 3 I would say 3 5 is 15, right? so 50 words for risk, 50 words for perils, and 50 words for hazard, right? so this is how you can contribute
equal weightage to each and every part of the answer. The next is the concept of insurable interest and explain how is it defined in marine insurance, property insurance and life insurance. बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ वहाँ की बात बिल्कुल नहीं करनी है. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंसेप्ट बताओ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, राइट अबाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दैट व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, राइट. इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं पाओगे. ज्यादा से ज्यादा मान लो आपने कोई फीचर याद किए हुए, आप बहुत जल्दी से लिखना चाहते हो तो एक सर्कल बना दो वैसे, और यहाँ 1 2 3 4 बहुत ही ब्रीफली बस वो फीचर के कीवर्ड्स लिख के आ जाओ. उससे ज्यादा तो मैं नहीं सोचता कि आप कुछ कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, राइट. 7.5 नंबर का ही क्वेश्चन है और 150 वर्ड के अंदर लिखना है. सो यू हैव टू बी very wise when you are utilizing your time, right? So write the definition. If you know any keywords that you can sprinkle as a part of your answer, just draw the flow chart and write it over there, right? That's how you can approach it. उसके बाद जो second part of the question है उसको equal weightage देनी है आपको. ऐसा नहीं है कि you have given the entire weightage to the first part only, concept पूरे explain कर दे और यहाँ पर आपने जो पूछा बताया नहीं अच्छे से. तो यहाँ पर जो सबसे important चीज आपको लिखनी है, how you are identifying it. So यहाँ पर जो सबसे important keywords है वो ये है that marine insurance को किस stage पर identify करते हैं. We identify it in case of loss, at the time of loss, right? The insurable interest must exist at the time of loss. For example, if you are sold, if you are somebody who is trading goods, right, through ships, right, and you are the seller and somebody is the buyer. Now you are selling goods and midway basically you sold those goods to a certain type of buyer, right. Now the buyer is responsible for the goods, but that does not mean that once the buyer is having those goods, that then at that and if some sort of damage happens to those goods and those goods are insured, so the insurance is not going to loss, right. So that is why we say that marine, in case of marine insurance, the insurable interest must be at the time of loss, right. It means basically when the damage has been done, so उस समय insurable interest आपका होना ही चाहिए. So that is something what it means. If we talk about property insurance में जो I would say insurable interest है वो होना चाहिए both at the time of inception, right, and at the time of loss only. यानी कि जब आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए जा रहे हो तो प्रॉपर्टी के आप ओनर होने चाहिए उस समय भी, राइट. पहली बात ये है. और दूसरी बात, जब आप प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो गया उस समय भी आप उसके ओनर होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी आपने किसी को बेच दी, राइट. तो वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आई वुड से कहीं ना कहीं मैटर करता है. फॉर एग्जांपल, आप अपने नेबर का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं करा सकते. व्हाई? बिकॉज आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो. सो दैट इज व्हाई बेसिकली यहां पर आपको लिखना था कि इट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस ऑल्सो. द थर्ड इज लाइफ इंश्योरेंस. सो दैट आई वुड से फॉर दैट ऑल्सो you are supposed to specify that it must exist at the time of policy inception. बाकी सब नहीं भी दिया तो वो बाद में बात की बात है, ठीक है. सपोज यू वर नॉट एबल टू राइट एग्जाम्पल, तो बात की बात है कि एग्जाम्पल नहीं लिख पाए, चलो एक आधा नंबर कट जाएगा. बट अगर यही नहीं लिखा आपने, जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि हाउ इज इट आइडेंटिफाइड, तो ये पीरियड्स आपने नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कटेंगे ऑफ कोर्स, राइट. सो दिस इज समथिंग विद विच यू नीड टू हैव क्लैरिटी अबाउट, एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. The next is why can't pure risk be controlled, and discuss the difficulty insurers face in controlling the pure risk. Now over here what you have to do basically, जितना क्वेश्चन ने पूछा उतना ही बताना है. यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है, बहुत ही स्पेसिफिक रहना है, बिकॉज 150 वर्ड्स में 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है. So while you are attempting this question, so be precise as much as possible, right. तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि प्योर रिस्क के बारे में पूछे, थोड़ा सा आप हाईलाइट दे दोगे कि यार प्योर रिस्क क्या होता है. ये मैं कहूंगा, मैंने अभी भी ज्यादा लिख दिया है क्योंकि आपको थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए. मैं तो कहूंगा कि इसको एक लाइन से ऊपर लिखना ही मत, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होगा. ज्यादा 2 लाइन लिख दो, प्योर रिस्क लिखो और उसका एग्जांपल दे दो. द जॉब इज डन. आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दे आर व्हाई can't pure risk be controllable, so uncontrollable nature of pure risk. So you can write, I would say, 3 points for that, and after that you can talk about the difficulties that the insurer face in case of controlling pure risk, right. So you can of course talk about challenges. So 3-4 challenges लिख लो. टाइम कम है तो इन लाइन को बेशक आप कट शॉर्ट कर सकते हो, या फिर हेडिंग के साथ सिर्फ एक एग्जांपल डाल दो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो. तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर स्पेस एंड टाइम, बट द पॉइंट इज दैट you should be very precise, right. The answer should meet the demand of the question. That is the most important thing as far as this insurance paper is concerned, right. So you're talking about pure risk, you're talking about uncontrollable nature, you're talking about challenges, and ultimately you're writing the conclusion also. So that is basically how you can end this answer. The fourth is, what role do surveys play in the assessment of loss in the insurance sector, right. So again, मैंने आपको जैसे कि बताया था पहले भी एक क्वेश्चन इंटरमीडिएट से पूछा हुआ है. So if you have covered the syllabus, you could have answered this question. और मैंने पिछले क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल की बात नहीं की, तो ये क्वेश्चन भी आप देखो, तीसरा क्वेश्चन जो रिस्क से पूछा हुआ है, टाइप ऑफ रिस्क से पूछा हुआ है. तो आप देख सकते हो कि सिलेबस का जो शुरू का पोर्शन है,
दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से रिस्क से 3 क्वेश्चन ने पिछले साल पूछ लिया टाइप ऑफ रिस्क से। तो टाइप ऑफ रिस्क को, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को, राइट, तो ये पूछ लिया। और जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट पूछा है उन्होंने, वो भी रिस्क से रिलेटेड ही पूछा हुआ है। तो यू कैन सी दैट दिस कंपोनेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। बट ऑफ कोर्स आपको सारा सिलेबस अच्छे से कवर करना ही है, बीइंग अ responsible aspirant. But I hope you are able to understand that what is the relevance of the syllabus with respect to IRDI paper, right? So this is extremely important. Now the next is surveys की बात हम कर रहे थे। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, What role do surveys play in the assessment of losses in the insurance sector? अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है तो आप सीधा जाके सर्वेस का रोल लिख दो। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ कोर्स दे सकते हो, बट बहुत ही प्रिसाइजली within that word limit, right? So what you can do, firstly you can write that who are surveyors, तभी थोड़ा आंसर आपको कंप्लीट लगेगा। फर्स्टली डिफाइन who are surveyors, then you can talk about their roles with respect to insurance sector, right? So surveyors कौन होते हैं, हमें पता है that they are the entities basically who investigate and they assess the claims when a loss occurs, right? So that they are basically going to play the role with respect to the evaluation with respect to the loss or damage, right? And the purpose is that why they do so, why do they exist, so that basically the claim settlement process, it happens in a fair manner, right? And if you talk about their function, you have to talk about their function, you have to talk about inspection, verification, assessment, the collection of evidence, prevention of fraud, recommendation of compensation, right? तो आप इस तरह से points लिख सकते हो depending on the demand of the question. So you could have written this as the answer, right? So ये क्वेश्चन में डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं कैटेगराइज करूंगा, डायरेक्टली सिलेबस में से आ रहे हो, और आई होप आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अवेयरनेस आ रही होगी कि सिलेबस की एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में तो, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके टाइम मैनेजमेंट में भी, और आपके एफर्ट्स भी आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। The next is what are the major geopolitical challenges faced by the insurance sector. अब ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा है, बट अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर एंड ऑल पढ़ते हो या आपको थोड़ी इंश्योरेंस सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि ऑफ कोर्स आपको आ जाएगी सिलेबस खत्म करके, तो इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। बट नहीं भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 6 में से 4 ही करने थे आपको, एक आधा छोड़ना चाहते हो तो छोड़ना ही पड़ेंगे, ऑफकोर्स 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। सो यू कुड हैव लेफ्ट दोस क्वेश्चंस एंड यू कुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन आई वुड से, एंड यू कुड हैव अटेम्प्टेड सम अदर क्वेश्चन। बट कोई और क्वेश्चन है उसमें नहीं समझ आ रहा है, तो ये आपको आ रहा है दिमाग में कि थोड़ी कॉमन सेंस अप्लाई करके कि यार जियो पोलिटिकल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, राइट? तो पॉलिटिकल चैलेंजेस हो, टेररिज्म बेस्ड चैलेंजेस हो, राइट, जितने भी जियो पोलिटिकल चैलेंज है तो वो आप इस क्वेश्चन में टैकल कर सकते हो। बट मैं ये भी कहूंगा एट द सेम टाइम कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है जो टोटली इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं था। क्योंकि अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, जस्ट लुक एट हियर द लास्ट टॉपिक दैट इज मेंशन इन द सिलेबस, इट सेज रिटेंशन ऑफ रिस्क विद इन द कंट्री, राइट? तो ये चीज आपको यहां पर दी हुई है, दे हैव रिटन दिस एज अ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। और अगर हम अपने कोर्स की बात करें, मैं कोर्स की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं कि मतलब जब आप इसको अगर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी करते तो वो चीज़ हमने भी यहाँ कवर कराई थी। अगर आप भी पढ़ते, खुद से थोड़ी एक्सटर्नल रिसर्च करते, तो आपको भी यहाँ तक मिल जाता, ठीक है? आप यहाँ तक पहुंच जाते, इतना आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर मिल जाती कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। कहने का मतलब ये है, द क्रक्स इज दैट बेसिकली नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वाज आस्क्ड आउटसाइड द सिलेबस, राइट? एवरीथिंग वाज देयर aligning with the syllabus only, and syllabus shall be the top most priority as far as the insurance component is concerned, right? उसके बाद ही सब कुछ आता है। और अभी तक तो करंट अफेयर का क्वेश्चन तो मुझे कोई दिखा नहीं है, और पीवाईक्यूज को भी देखोगे तो कोई ऐसे आपको ज़्यादा करंट अफेयर बेस्ड कोई ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे नहीं। तो जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट, विद रिस्पेक्ट टू दिस इंश्योरेंस कंपोनेंट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट उसके बाद आपसे डेटा पूछा गया था, राइट? एक डेटा पूछा गया था, आई मीन आपको डेटा इंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोलूंगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉजिक भी नहीं लगेगा। और मैं बोलूंगा कि अगर आपको नहीं भी आता है, आपने नहीं भी पढ़ा है, बट अगर आपने, क्योंकि फेज 1 के लिए क्वांट्स तो पढ़ा ही होगा, राइट? तो क्वांट्स आप चाहे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करो, सो क्वांट्स से आप कंफर्टेबल होंगे, तो बेसिक क्वांट्स भी यहाँ अप्लाई करेंगे आप, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, परसेंटेज चेंज इन द इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्टेड बाय द कंपनी ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। तो आपने पढ़ा होगा कि यार किसी भी डीआई के पेपर क्वेश्चन में परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं, राइट? वी नो द फॉर्मूला a minus b upon b into 100, right? This is what we do. So what is the first value? The first value is, I would say, the value change in 2023, it is 4.5%, ठीक है? तो आप यहाँ तक देख सकते हो, it is 4.5%, and value 2, that is with respect to 2022, is 2. So 4.5 minus 2, 4.5 minus 2 divided by 2,
into 100, right? So you can calculate the percentage is it is going to be 125%, तो 125% सीधा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आराम से आप अगर आपने क्वांट्स और क्वांट्स भी अच्छे से किया है, डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से किया है, तो क्वांट्स का आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसका इंश्योरेंस सेक्टर से बोलूंगा कोई मतलब डायरेक्ट लेना देना था भी नहीं। अगर किसी को इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पता भी अच्छे से पूरी तैयारी की है बट कॉमन क्वांट्स के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए तो तब भी आप नहीं कर सकते थे इसको, ठीक है? तो क्वांट्स में थोड़ा सा भी डीआई का आइडिया होता, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम आप देखो, एक परसेंटेज चेंज पूछा है और एक एब्सोल्यूट चेंज पूछा है, तो एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है, 4.5 में से 2 को माइनस कर दो, 2.5 लाख इसका आंसर हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट? सो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आया, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है। सो आई वुड से सबने जो भी गए थे स्टूडेंट्स जो फेज 2 में वही पहुंचते हैं जो फेज 1 क्वालिफाई करते हैं, और फेज 1 में ऑफ कोर्स हमारे पास क्वांट्स है ही, तो सबने मुझे लगता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ही होगा। आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू मैनेजमेंट पार्ट। अब इसके सिवाय एक और क्वेश्चन भी था, एक और क्वेश्चन भी था जो मैं डाला नहीं, मैंने वो क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज आई वुड से उस क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन था वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था, राइट? तो वो भी क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे दिया था, उसके थ्रू आपको आंसर करना था। बट क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था प्रिसाइजली वही क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन तो चलो एक्यूरेट है बिकॉज ये हमने कलेक्ट किए हैं, बट वो ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किया है वो थोड़ा आई वुड से थोड़ा डिफरेंट होगा जो एग्जाम से आया था, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे पेस्ट नहीं किया। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि एक क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी आया था, बस आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे दिया था एंड उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखने थे, राइट? और मैंने आपके साथ पीवाईक्यू की फाइल शेयर कर ही दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो ऑफ कोर्स यू कैन डाउनलोड इट एंड यू विल गेट द आइडिया विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वेश्चन आल्सो। I hope it is clear. Now let us talk about management. The best part is that the same rule that applies to insurance applies to management also, because let me tell you that the questions that are asked in management they come directly from the syllabus only. Again, syllabus बहुत important role play कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ जाए, ठीक है? तो इस एग्जाम के लिए ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं हो, ठीक है, तो आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो बट अगर आप अच्छा खासा टाइम दे रहे हो हर कंपोनेंट को, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट को, ट्रस्ट मी सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। नो डाउट कि अगर आपको एक बुक पूछोगे मुझसे कि इंश्योरेंस के लिए कौन सी बुक लूं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी आपको जहां पर एक ही बुक में सारा सिलेबस आपको एक ही साथ मिल जाए। मैनेजमेंट में मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल LM प्रसाद वाली बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको वहां हेल्प मिल जाएगी, बट इंश्योरेंस में इट इज नॉट, आई वुड से इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी बुक है भी नहीं। जैसे एस चांद पब्लिकेशन की आपको बुक्स मिल जाएंगी बट अगेन एक बुक में सारा सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको बहुत चीजें गूगल करनी पड़ेंगी, राइट? तो यहाँ वहाँ थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगी, बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि डुएबल नहीं है, इट इज डुएबल। एंड ऑफ कोर्स अगर नहीं है डुएबल देन वी आर ऑल्सो फॉर यू, यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो, राइट? बट द सबसे पहले सेल्फ स्टडी से ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट यू कैन लुक इनटू अदर ऑप्शंस। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, एंड लेट अस टॉक अबाउट मैनेजमेंट। और अब ये देखते हैं कि किस तरह हाउ what type of management questions were asked and how they were aligned with the syllabus, right? So you can see the first question was for 300 words, और 300 words के लिए आपको 3 पेज की स्पेस दी जाएगी, ठीक है, एग्जाम में। तो 3 पेजेस के अंदर आपको 300 वर्ड्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा एंड इट इज गोइंग टू कैरी 20 मार्क्स। नाउ लुक एट हियर, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लीडरशिप एंड मोटिवेशनल थ्योरीज। अगर आप सिलेबस खोल के देखो डायरेक्टली आप देखोगे कि लीडरशिप इज समथिंग एंड द मोटिवेशन इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, राइट? So that is why I told you that syllabus is very important. Same rule applies to the management also, that each and every keyword has to be covered. Each and every keyword has to be covered while covering management. You cannot compromise with any keyword. एवरी कीवर्ड हैज टू बी कवर्ड इन डिटेल, बिकॉज आप देख सकते हो अगर आपने लीडरशिप पढ़ा लेकिन उसकी थ्योरीज अच्छे से नहीं की तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया 300 नंबर में से, और अच्छी खबर लेकिन ये है, गुड न्यूज इज दैट यू हैड टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 2, राइट? तो या तो आप ये कर लेते या तो ये कर लेते हो। ट्रेनिंग के बारे में बताओ, आप यहाँ देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट? सो यहाँ पर भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसलिए मैंने कहा हर कीवर्ड पे अगर आपकी कमांड होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इंश्योरेंस मैनेजमेंट के पेपर में, आई कैन एश्योर यू दैट, राइट? सो that should be the topmost priority. Now moving forward, if we talk about the answer to this question, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की अप्रोच की बात करें। अब ये जो क्वेश्चन है वो 300 मार्क्स का है, राइट? 3 पेजेस मिलेंगे आपको, नो डाउट, लेकिन मैं बोलूंगा कि आई वुड से ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज दैट क्वेश्चन आपको कोई स्पेसिफिक थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहे। क्वेश्चन का पर्पस ये है कि आप डिटेल नोट लिखो लीडरशिप की जो डिफरेंट थ्योरीज है और मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज है। द पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू ओवर एलैबोरेट थिंग्स, राइट? The focus should be upon what? The focus should be basically upon
कवरिंग द वेरियस टाइप ऑफ थ्योरीज दैट आर देयर। जितनी ज्यादा डाइवर्स तरह की थ्योरी आप लिख पाओगे उतना ही आपका आंसर ज्यादा डिटेल्ड बनता जाएगा, राइट। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लीडरशिप थ्योरी की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो यार बाकी थ्योरीज क्या लिखनी, मेरे को 2 थ्योरी पकड़ लेता हूँ, 3 थ्योरी लिख लेता हूँ, मुझे वो सबसे अच्छी आती है, तो उसमें मैं बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के आ जाऊंगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप उसकी जगह ज्यादा थ्योरीज कवर करोगे अपने आंसर में, तो वो ज्यादा सेंस बनाएगी आपके, आई वुड से, अप्रोच में, राइट। यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नो डाउट कि आपको एग्जाम्पल तो लिखने ही लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि ये आंसर प्रिपेयर करते टाइम शायद मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना भूल गया, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने चेक किया कि एग्जाम्पल्स भी यहाँ लिखने चाहिए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया मेरे एंड से, आई एम सॉरी अबाउट इट। बट द पॉइंट इज दैट यू आर वाइल राइटिंग दिस क्वेश्चन, apart from I would say the leadership theories, right, थोड़ा एग्जांपल देने की भी कोशिश करो, so that basically your answer become more comprehensive, but at the same time you have to take care about the space and the time also, right, कि स्पेस जो प्रोवाइडेड है वो 3 पेज की होगी, उससे ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगी, और टाइम जो है उसका भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम बहुत चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है, राइट। सो वो भी आपको थोड़ा सा एट द बैक ऑफ द माइंड रखना है। सो यू कैन सी इट ओवर हियर। पहले हमने लीडरशिप की थ्योरीज बता दी यार, ये थ्योरीज होती है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो, वो आपने एक्सप्लेन कर ली। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए एग्जांपल, तो चाहे आप एग्जांपल एक एक थ्योरी का दे दो, या फिर किसी एक लास्ट में सेलेक्टिव एक पैराग्राफ लिख दो जो एक तरह की समरी प्रोवाइड कर दे इस एग्जांपल के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू दी थ्योरीज, राइट। आप वो भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट सेम तरीके से मोटिवेशनल थ्योरीज आ जाएंगी, जिसमें मैस्लो आ जाएगा, हर्जबर्ग, मैग्रिगोर्स, देन आई वुड से ब्रूम्स थ्योरी ऑल्सो, राइट। तो कोशिश करो डाइवर्स थ्योरीज कवर करने में, इंस्टेड कि आप 1-2 थ्योरी सिर्फ पकड़ो, उनको बहुत ज्यादा उस पर आप पैराग्राफ लिख के आ रहे हो, तो ऑफकोर्स ये वाला फॉर्मेट जो है वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, राइट। यू विल बी एबल टू प्रेजेंट मोर क्लैरिटी टू द एग्जामिनर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि मैस्लो थ्योरी क्या होती है, हर्जबर्ग थ्योरी क्या होती है, तो मुझे लगता है कि वो गलत एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि एक वीडियो में ये सारा कवर करूंगा तो वीडियो 2-2 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या माइंडसेट चाहिए, और डिफिकल्टी लेवल क्या था। डिफिकल्टी लेवल मैं अभी तक बोलूंगा, आई एम सॉरी टू से अगर आपको मेरा आंसर थोड़ा बायस लग रहा है, बट मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन अभी तक डिफिकल्ट नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस में से आ रहे हैं। जस्ट लुक एट हियर, डायरेक्टली यार, अब देखो, जब सिलेबस डायरेक्टली आपको बोल रहा है, कि यार लीडरशिप पढ़ के आओ, क्या होता है लीडरशिप, और वो बोल के भी ये भी लिख रहे हैं आपको कि लीडरशिप की थ्योरी पढ़ के आओ, तो अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर मुश्किल हो गया, इसका मतलब कि आप ही अंडर प्रिपेयर्ड हो, राइट। द सेम इज विद द मोटिवेशन ऑल्सो, वो डायरेक्टली लिखेगी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो इससे आसान में क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, राइट। और वो भी एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑन जॉब ऑफ ट्रेनिंग, ऑन जॉब और ऑफ जॉब ट्रेनिंग नहीं किया तो समझ में आ रहा है, नहीं कवर कर पाए, टाइम नहीं मिला, ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाए, बट ये तो कर ही लेते ना। सो दैट इज व्हाई आई एम कैटेगराइजिंग it as a easy level question, right? The same with on job off job also. So on job और off job के बारे में पूछा है, you will define what it is, you will talk about the method। अब मेथड को एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट, सिंपली लिख देना है क्या मेथड होती है, आपके पास वहां पे फ्लो चार्ट बना सकते हो, छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है, बड़ा नहीं, बिकॉज ज्यादा स्पेस चली जाएगी। तो यहाँ पर लिखो व्हाट आर द मेथड, ऐसे सर्कल बना दो, 1 2 3 4, 4 मेथड लिख दिए, चलो बात खत्म, आगे चलो, गो टू द एडवांटेजेस एंड मूव ऑन टू द लिमिटेशंस, राइट। उसके बाद आगे चलो, सेम विद द ऑफ जॉब आल्सो, मेथड, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली आंसर दिस क्वेश्चन। जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा आपका आंसर में, उतनी ज्यादा क्लैरिटी प्रेजेंट कर पाओगे एग्जामिनर को, एंड उतने ज्यादा आपके जो मार्क्स को मैक्सिमाइज करने का स्कोप होगा वो ज्यादा होगा, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहां पर देखो, अगेन आपको चॉइस दी अच्छी खासी, answer any 2 questions given below in 100 words, right? So the question is regarding authority and delegation, staffing as a function, difference between personal management and human resource management, and write a detailed note on organizational behavior also, right? तो ये थोड़ा डिटेल पूछा है, बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं 100 वर्ड्स के, 100 वर्ड्स का मतलब ये कि आपको 1.5 पेज दिया जाएगा, ठीक है। 1.5 पेज आपको मिलेगा, वहां पर उस 1.5 पेज के अंदर आपको आई वुड से अटेम्प्ट करना है, पर क्वेश्चन 1.5 पेज होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन के लिए नहीं, पर क्वेश्चन के लिए 1.5 पेज होगा। सो 2 क्वेश्चन के लिए तो उस पेज पे आपको दोनों आंसर्स लिखने होंगे। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट अथॉरिटी, सो यू कैन डिफाइन दैट अथॉरिटी वी नो इज द लेजिटिमेट पावर वेस्टेड इन द पर्सन टू मेक डिसीजंस, गिव ऑर्डर्स एंड इंश्योर कंप्लायंस, राइट। उसके बाद आप बात कर सकते हो व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी एंड एग्जांपल। यहां पर भी आप बात कर सकते हो पर्पस, स्कोप, एड एग्जाम्पल, राइट। एंड अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, राइट। उसके बेसिस पे भी आप ऑफ कोर्स आप आंसर को लिख सकते हो बेस्ड ऑन दैट, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अब यहाँ पर सॉरी मैं कंक्लूजन ऐड करना भूल गया, शायद मैंने ऐड किया था लेकिन यहाँ पर मैं पेस्ट नहीं कर पाया उससे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा कंक्लूजन में लिखो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क का क्वेश्चन है, 1.5 पेज में लिखना होगा, बट एट द सेम टाइम आप
कुछ ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है बिकॉज जो स्पेस है वो लिमिटेड होगी एग्जाम में, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, जो मैं आपको सजेशन दूंगा इसमें जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, एग्जाम्पल में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हो ताकि एग्जाम्पल इन चीजों को कवर कर दे, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हो, बट रिगार्डिंग पॉइंट्स कीप इट टू द पॉइंट ओनली, राइट, डू नॉट ओवर इलेबोरेट। सो दैट इज द आइडिया। The next is regarding explain staffing as a function of management. तो जितना क्वेश्चन है you have to answer accordingly. First define what is staffing, right? Then you have to talk about key aspects with respect to staffing that make staffing as a function of management, right? We know about the different components when we talk about management, right? When we talk about management, so staffing is also one of them. So you have to talk about the key aspects of staffing are manpower, recruitment and selection, training and development, placement and induction, performance appraisal, compensation and retention, right? And ultimately what you can do, you can finish it with a good conclusion that it is not only about filling position but also about developing and retaining talent. And by ensuring the right fit between people and roles, staffing contributes to organizational growth, stability and long term success. So that is how basically you could have attempted your answer. And I would say ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बिकॉज ये तो सिलेबस के सबसे पहले टॉपिक में से आया है। सबसे पहला टॉपिक है, जिसने भी सिलेबस कवर किया होगा आप देखो, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग, और यहीं से डायरेक्टली उन्होंने निकाल के क्वेश्चन पूछ लिया। अब इससे आसान वो क्या पूछेंगे आपसे, आप ही मुझे बताओ। इससे आसान कुछ हो सकता है किसी पेपर में कि डायरेक्टली सिलेबस में से उठा के वो कीवर्ड चूज करे और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिलेबस इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम थिंग दैट यू हैव टू डू। अब जो दूसरा पेपर है आपका ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस, वहां पर वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आया भी जैसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पूछ लिया था, तो वो कृतिका मैम की वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। बट यहाँ पर अभी तक हमें कोई ऐसा कोई मेजर करंट अफेयर का रोल दिखा नहीं है, तो सिलेबस आपकी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो और मैं तो यही कहूंगा कि यार जो स्टूडेंट्स आरबीआई जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका तो मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट का सिलेबस है वो आरबीआई के मैनेजमेंट के सिलेबस से छोटा है, नो डाउट रिगार्डिंग दैट, राइट। तो वो आपने कवर किया तो ये आपके लिए खेल होना चाहिए, दिस इज लाइक अ play for you, right? So you can basically cover this in a comprehensive manner and accordingly you can attempt the descriptive paper also, right? So that is the idea. अब last question I would say regarding the second last question regarding personal management and HR, human resource management. तो यहाँ पर भी आप सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हो, talk about what is personal management, which is a traditional approach to manage the workforce focusing on administrative tasks such as employee recruitment, payroll, compliance and welfare, right? And if you talk about the different parameters, you can talk about the nature of personal management. You can talk about, I would say, the focus that it emphasizes upon employee satisfaction and adherence to rule and regulation. You can talk about approach that it treats employees as a tool of production, relationship is largely contractual, right? तो इसको आप चाहो तो जैसे यहाँ पर मैंने वो फुल सेंटेंस नहीं लिखा है, सीधा लिख दिया है कि रिलेशनशिप इज लार्जली कॉन्ट्रैक्चुअल। तो आप क्या चाहो, आप चाहो तो अप्रोच के अंदर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी लिख सकते हो, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन ब्रेक डाउन द सेंटेंस और वो थोड़ा और अच्छा स्ट्रक्चर लग सकता है एज अ पार्ट ऑफ दिस आंसर। देन इफ यू टॉक अबाउट स्कोप, वी नो दैट स्कोप इज नैरो, लिमिटेड टू रिकॉर्ड कीपिंग, सुपरविजन एंड लेबर रिलेशन। अब मैंने इसको वन लाइन में लिख दिया, ऑफ कोर्स नो डाउट कि अगर आप स्कोप लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख दो स्कोप, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिख दो नैरो, पॉइंट नंबर 2 लिमिटेड टू ये, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, तो ऐसे करके लिखोगे तो और ज्यादा बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ऑफकोर्स मैं डायग्राम नहीं बना सकता क्योंकि मैंने टाइप किया हो, ये हमने टाइप बेस्ड है, बट वहां पर आप पेन एंड पेपर से लिखोगे, ठीक है। तो वहां पर आप जो स्कोप ऑफ आई वुड से क्रिएटिविटी है वो थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो आप ऑफकोर्स उसको यूज कर सकते हो। देन सेम पैरामीटर हम एचआरएम में भी यूज कर सकते हैं, नेचर, focus, approach and scope, right? And after that what you can do, you can conclude it with a, I would say, a conclusion that HRM adopts a strategic approach whereas personal management is more administrative. क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? बिल्कुल नहीं, सेम चीज है, सेम सिलेबस से पूछा हुआ है अगेन आई वुड से, और तो इसमें और ज्यादा आसानी होनी चाहिए आपको क्योंकि 4 में से 2 ही क्वेश्चंस करने थे, राइट। सो दैट इज द आइडिया। Apart from that, we have this organizational behavior also, the same rule. You have to define organizational behavior. You have to talk about the key aspects, that what are the different aspects of organizational behavior. We know that it is about study of how individuals, group, organizational structures, they interact within a workplace, right? And what is the objective? The objective is to understand, predict and influence basically human behavior so that basically it can improve both organizational effectiveness and also it can benefit the employee too, right? Then you can talk about the key aspects of organizational behavior. For example, you can talk about, I would say, the individual
the individual behavior, you can talk about group dynamics also, you can talk about, I would say, the organizational structure also, right? So these are the, I would say, are the obvious aspects that are there with respect to organizational change. Then at the end you can also talk about the importance that is there, the importance with respect to the organizational change, right? So this is something again you can write as a part of it. Now, after that, of course, you can conclude your answer by saying that organizational behavior integrates concepts from psychology, sociology, management to provide holistic understanding with respect to workplace dynamics. अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो से रीड कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैंने आपको पहले बता दिया था, इंटेंशन ये नहीं है कि आपको आंसर बताना है क्या है। आंसर तो ऑफकोर्स आपको मैनेजमेंट कवर करोगे या आपको वहां से मिल जाएगा, बट इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हो कि डिटेल नोट में किस तरह से आप पैरामीटर्स को सोच सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स, यू कैन टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑल्सो, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू, आई वुड से, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. Now, as a part of management, they had asked the numerical also. So I would say this was also very basic numerical based on data interpretation. So firstly, they are asking you to calculate the profit margin, profit percentage growth over the years. So based on this, you can analyze this DI, and you can just use the same formula that you had used in the insurance also. For example, profit in year 2, profit in year 1 upon profit in year 2 upon 100. Again वही same आ गया, A minus B upon B into 100, right? तो ऐसे आप percentage change कहीं भी calculate करते हो. So based on that you could have written the answer. उसके बाद सेम चीज यहाँ भी पूछी है, वहां पर उन्होंने आई वुड से प्रॉफिट ग्रोथ पूछ लिया विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ पूछ लिया विद रिस्पेक्ट टू लाइफ इंश्योरेंस, राइट? सो अगेन इन अ वेरी सिमिलर मैनर यू कैन कैलकुलेट द लाइफ इंश्योरेंस प्रॉफिट ग्रोथ ऑल्सो by using the similar type of formula, right? So I hope it is clear to you. Now before I end the session, I would say that if you have any question or any kind of query, please free to ask it in the comment box. Apart from that, if you want to see how EduTap can help you as a part of your preparation, so you can go to a website, you can open the IRDI courses, so you can just open it over here, IRDI Grade A courses, and as a part you can see, as a part of it you can see that we provide these two courses, gold and silver. In gold we provide content for both phase 1 and phase 2, and in case of, I would say, silver course, we provide content for phase 2 only, and these are the details, and this is the coupon code that you can apply in order to avail the discount, right? And for rest of the details, of course, we provide combo courses also, so you can go to a website and you can read the details. And I hope it was helpful for you, and you can ask a query in the comment box if you have any. Thank you so much.